Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Zubair Ahmed Mir and welcome to Green Valley Digital Classes. Today our topic is alternative centers of power. In the previous lectures I told you people about Cold War, disintegration of USSR or the Second World. Then we people have discussed US hegemony in the world politics. Today we have to discuss that were there or are there any alternative centers of power other than United States of America after the disintegration of this USSR or not. ये हमारा आज का सवाल है और इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही रखा गया है Alternative Centers of Power. This is your chapter number 4. It became clear after the disintegration of USSR in 1991 that the world is actually headed by only one superpower, that is United States of America. लेकिन इसके साथ ही it was clear that some other alternative centers of power will come into being because world was in need of these alternative centers of power that time. There are so many reasons that why do we people need these alternative centers and बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोग खुद भी जानते हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब जो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे और उनको डिस्कस करके हम ये देखेंगे that do we people really need alternative centers of power or is there no need of any alternative centers of power in the world? So let's come back to the point. It became clear after the disintegration of USSR in 1991 that there was only sole superpower in the world, that was United States of America with all its might, strength, nuclear arsenal and its allies, that is NATO, North Atlantic Treaty Organization, और उसकी वजह से it was controlling the world as a whole. Because इसके सामने कोई भी ऐसी entity, कोई भी ऐसा power नहीं था that can control the actions of United States of America, and इसीलिए 1990s में यूएसए को टक्कर देने के लिए दो रीजन्स में, दुनिया के दो बड़े कॉन्टिनेंट्स में दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आ गई. इसके साथ ही एक और अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर भी वजूद में आ गया. उनके बारे में हमें डिस्कस करना है. वो वजूद में क्यों आए, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसे कदम क्यों लिए, वो भी हम इसमें साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे. सो लेट अस कम बैक टू द पॉइंट. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को टक्कर देने के लिए an alternative center of power came into being in Europe, called as European Union, and in Asia two more alternative centers of power came into being. One was ASEAN, that is Association of South East Nations, Southeast Asian Nations, Association of Asian Nations. So this was another organization that came into being to confront with United States of America at that time. But nowadays one more organization, one more country as an alternative power has been developing in the world at the international scene, and as you people know, the name of that country is China. And China is actually becoming stronger economically. So it is an economic power in the world. So these were the three alternative centers of power that have come into being soon after the disintegration of USSR in 1991. Let's go back to Cold War first. पहले हमें ये बात जाननी चाहिए और हमें थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करना चाहिए, ये ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर क्यों चाहिए थे, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, और मैं किस चीज के बारे में यहाँ पर 1991 किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, डिसइंटीग्रेशन किस चीज की हुई. कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1945 में, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं. It started in the year 1945 and it continued till 1991. और दुनिया में कोल्ड वॉर दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या दो बड़ी सुपर पावर्स या दो बड़ी कंट्रीज के बीच में वजूद में आ गया. एक साइड से था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैपिटलाइजेशन का सिस्टम. दूसरे साइड से था यूएसएसआर जो कि रशिया हेड कर रहा था और ये कम्युनिज्म या सोशलिज्म पे बिलीव करते थे. तो इनके बीच में एक प्रोपेगेंडा वॉर स्टार्ट हुआ जो कि तकरीबन इट कंटिन्यू टिल 45 years and ultimately due to the stagnation, economic backwardness of other things in USSR disintegrated in the year 1991. Then दुनिया में एक ही सुपर पावर रहा ना, ये सुपर पावर खत्म हो गया और ये सुपर पावर वहीं पर रह गया with all its powers intact, with all its allies
रिजाइडिंग बाय इट्स साइड, वो आज भी इसको सपोर्ट करते हैं। दैट इज वाई तब हम कहते हैं दैट अगर दुनिया में एक ही सुपर पावर रहा, देयर इज इम्बैलेंस इन द वर्ल्ड। लेकिन जब दुनिया में बाकी सुपर पावर्स भी आ जाएंगे तो दुनिया में बैलेंस हो सकती है। सो देयर वाज अ नीड ऑफ अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ द पावर इन द वर्ल्ड दैट टाइम। दैट इज वाई दीज ऑर्गेनाइजेशंस केम इनटू बीइंग इन द वर्ल्ड after 1991, after the disintegration of USSR, and उसमें से एक थी यूरोपियन यूनियन जो कि यूरोप के कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, दूसरी आसियान दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और तीसरी उसमें एक कंट्री है दैट इज चाइना। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप ऑफ कंट्रीज टुगेदर, दे हैव मेड एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कॉपरेशन, थ्रू कोऑर्डिनेशन, सो दैट दे विल चैलेंज द बिगेस्ट सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड in the present times, in the future as well. So what was the main motive of this European Union? As you people know that जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती है वो कॉपरेशन के जरिए काम करने की कोशिश करते हैं, एंड कॉपरेशन में वो बहुत सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले दे वांट टू डेवलप देमसेल्व्स, डेवलप इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, educationally, technologically, etc. लेकिन आई सेड देयर वाज अ नीड ऑफ द अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। यही चीजें खाली जरूरी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी आपको देखना है कि क्या कोई और भी चीज थी जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस या आसियान जैसी ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आ गई या नहीं। हां, अगर आप वापस जाएंगे यूरोपियन यूनियन की तरफ तो मैं आपको यह बोलना चाहूंगा दैट्स 2 वर्ल्ड वॉर्स दैट केम इनटू बीइंग इन द वर्ल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 1914 to 1918 first world war, दूसरा 1939 to 1945. It had shattered the economic structure, the political, the educational, the technological structure of all the countries of Europe. So there was a need of alternative centers of power in the world, so that this organization will help all the nations of Europe to develop, to rebuild and to reconstruct their foundation stones, so that they will be able to compete with the rest of the world. If not, then they will extinct with the coming of the time. So that was actually the motive कि हम इस चीज को मद्देनजर रख के ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर ने हमारी जो इकोनॉमी को पूरी तरीके से खराब कर दिया है, सियासत को खराब कर दिया है, हमारी तालीम को खराब कर दिया है, हमारी टेक्नोलॉजी को या तरक्की को, जो भी किस्म की तरक्की है उसको पूरी तरीके से शटर कर दिया है। इस चीज को मद्देनजर रखने के लिए, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखने के लिए हमें अपनी कंट्रीज को फिर से डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज व्हाई यूरोपियन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आ गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आस्क अ क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स दैट वाज आस्क्ड बाय द लीडर्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज टू देमसेल्व्स इन 1991 एंड सून आफ्टर 1945 इवन, अगर आप कह सकते हैं, क्योंकि 1945 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। वो सवाल क्या था? सवाल यह था कि यहां के लीडर्स ने, यूरोप के लीडर्स की मैं बात कर रहा हूं, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज पाई जाती है, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज पाई जाती है। इन्होंने यह सवाल पूछा दैट जिस दुश्मनी की वजह से हमने वो 2 वर्ल्ड वॉर्स किए और अपनी कंट्रीज को, अपनी मईशियत को, अपनी हर एक चीज को हमने खत्म कर दिया, तबाह कर दिया राइवलरी की वजह से, शुड वी पीपल रेस्टोर टू द ओन राइवलरीज अगेन, और डू वी नीड टू रिकंस्ट्रक्ट, rebuild and re-establish the foundation stones of our country? What should be done? So the idea was that we people should take a stand that we have to cooperate with each other, और हमें उस rivalry को खत्म करना है, हमें उस राइवलरी को खत्म करना है। तो इस तरीके से हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, तब जाके हम अपने फिर से नए सिस्टम को, नए स्ट्रक्चर को फिर से रिबिल्ड कर सकते हैं। इसीलिए यूरोपियन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आ गई। सो लेट्स टॉक अबाउट यूरोपियन यूनियन। ये बनी कैसे? मैंने आपको एग्जांपल दी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ही यूरोपियन यूनियन को बनाया गया। उसकी वजह मैंने आपको दे दी कि यहां के लीडर्स ने अपने आप से एक सवाल पूछा। सवाल यह था, क्या हम पुरानी उसी दुश्मनी से काम ले? Do we need to restore to the old rivalries
that we had in the previous times, and with which two world wars came into being, and that destructed all the structures of our countries? Or do we need to rebuild our structures through cooperation, through coordination, as well as the friendship talks? तो जवाब ये मिला that we need to cooperate, we need to coordinate, and we need to rebuild our friendship, and हमें अपने इस कॉन्टिनेंट को, हमें अपने इस एरिया को फिर से डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन के जरिए तब जाके यूरोपियन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आ सकती है। तो पहला सवाल यहां पर यह था कि इन्होंने अब यहां पर तय ये किया that the destruction that was caused by the first world war and the second world war, उसको खत्म करने के लिए हमें यूरोपियन यूनियन या ऑल्टरनेटिव सेंटर्स के जो पावर सेंटर्स जो है वो हमें बनाने चाहिए। नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ही इनकी सारी मईशत खत्म हो गई थी, इसीलिए अब इन्होंने एक नए से एक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की ताकि एक दूसरे के साथ मिलकर वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो व्हाट वर द रीजंस? मैंने आपको रीजन बोल दिया, बट मैं फिर से लिखूंगा व्हाट वर द reasons that EU was established। इसको एस्टैब्लिश करने के क्या वजूहात थे? What were the reasons? सबसे पहले the Cold War। Cold War was one of the reasons that this alternative center of power had to come into being, because Cold War दुनिया को खत्म कर रहा था, इसको खोखला कर रहा था, इसको तबाह कर रहा था। So the need of the hour was that we have to make an alternative center of power जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, and this Cold War will come into being। Cold War, as you people know, it was nothing but a propaganda war, a brain war and a nerve war that was kept into operation, as said by Jawaharlal Nehru। ये कुछ नहीं था, एक propaganda war था, एक nerve war था, एक brain war था, जो कि एक दूसरे के बीच में इनमें चल रहा था, यूएसआर और यूएसए के बीच में। इसको खत्म करना ही था, क्योंकि दुनिया इससे तबाह हो रही थी, बिकॉज दुनिया दो बराबर हिस्सों में बढ़ रही थी, एक साइड से कम्युनिज्म, दूसरे साइड से सोशलिज्म। बट इट वॉज दिस कोल्ड वॉर दैट aided the formation of European Union. How? Is it possible? Yes. Let's go back to United States of America to 1940s. President Truman of United States of America wanted some suggestions कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में कम्युनिज्म को लिमिट कर सके, और तब उसका जो सेक्रेटरी था, जो स्टेट का सेक्रेटरी था, उसका नाम था मार्शल। मार्शल सजेस्टेड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटेन the communism in the world, and for that we need a solution, and I have the solution, and the solution is that we have to provide aid, that is economic aid, to all those countries of the world which are in need of economic development, especially the countries of West and East Europe। दोनों रीजन्स की कंट्रीज में हमें ये इकोनॉमिक एड पहुंचाना ही है। इसीलिए द प्लान दैट वाज गिवन बाय मार्शल एंड प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट ट्रूमैन वाज राइटली कॉल्ड एज, मैं यहां पर लिखूंगा द मार्शल प्लान। इट वाज कॉल्ड एज द मार्शल प्लान, एंड इसके जरिए दे सेड दैट वी नीड टू गिव डॉलर्स 130 billion to these European nations so that they will be able to rebuild your economic structures that was destructed by First World War and Second World War, because they were in need of that. So I said that it was the Cold War that aided the formation of European Union, क्योंकि इसी की वजह से अब इनको पैसे मिल रहे हैं। So now they understood that if we have to rebuild our economic structures, then we need to cooperate and coordinate, and this is the beginning of the cooperation, because United States of America
खाली एक ही कंट्री नहीं है, इसके पीछे कुछ और कंट्रीज भी है जिनको हम नाटो कंट्रीज कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिनको हम सीटो कहते हैं या जिनको हम सेंटो कहते हैं, बगदाद पैक्ट या मिडिल ईस्ट पैक्ट जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो मैंने आपको पहले चैप्टर में पहले लेक्चर में बोला हुआ है। तो नाटो की कंट्रीज सारी मिलकर जो है 130 मिलियन डॉलर्स जो है वो इन कंट्रीज को एज एड देंगे, इकोनॉमिक एड देंगे और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। सो ये पहला स्टेप लिया गया था जिसकी वजह से दे केम टुगेदर और इन्होंने एक कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप से काम लेने की कोशिश की और इसी वजह से मार्शल प्लान की वजह से दे वर एबल टू establish an organization called as European Economic Cooperation. I'll repeat my point. It was because of this Marshall Plan that this amount of aid was given to the European nations, to the countries of the European continent, ताकि इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। लेकिन मैंने ये बात भी बोली दैट कोल्ड वॉर की वजह से ही यूरोपियन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आ गई। अब सवाल ये है कैसे? मैंने बोला पैसे की वजह से, लेकिन इसी पैसे को देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे established an organization called as European Economic Cooperation. So the beginning of a new alternative center of power has actually come into being. ये वजूद में आ रहा है, ये इस तरीके से बढ़ रहा है। अभी यूरोपियन यूनियन नहीं बना, लेकिन पहली ऑर्गेनाइजेशन दैट विल एड दिस यूरोपियन यूनियन, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन वजूद में आएगा। तो पहले बात यहां पर यह करेंगे, जब आप किसी इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करेंगे तो उसमें एक कंट्री या दो कंट्री हो सकती है, 3-4 कंट्रीज भी हो सकती है, 5-10 कंट्रीज भी हो सकती है। तो ये मिलकर आप एक कॉपरेशन बना रहे हैं जिससे वो इकोनॉमिकली इन कंट्रीज की मदद करेंगे। दीज कंट्रीज, दोज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच आर इन नीड ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पेशली द कंट्रीज ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट यूरोप। क्लियर? तो इसके बाद हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे जो कि इसके बाद वजूद में आई। मैं फिर से रिपीट करूंगा दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग, इट वाज एडेड बाय मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ताकि ये एक दूसरे की हेल्प इकोनॉमिकली कर सके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन 1949, I'll erase it first, इसको मैं रहने देता हूं ताकि आप लोग को ध्यान रहे। Second, in 1949, the Council of Europe was established. चलिए पहले हम इस काउंसिल की बात करेंगे। पहले हम इस काउंसिल की बात करेंगे। काउंसिल का मतलब होता है जहां पर हम कोई भी बात डिस्कस करते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। लेट्स टॉक अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। If we have to pass a bill for the benefit, for the betterment of the people of India, then we need to discuss these things inside the parliament. And parliament is nothing but the council of people. It is the council of the people that discusses the important matters in the parliament and the council so that the problems, the grievances of the people should be addressed. They should be taken care of. So same is the case in 1949. 1948 के बाद इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाने के बाद they started to think, and that is why this organization came into being. हमें काउंसिल बनाना है जो एक दूसरे को सजेस्ट करेगा कि हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। हम उन मसलों को अपने काउंसिल में डिस्कस करेंगे ताकि हमारा मसला जो है, जो मेन मसला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो मसला है, जो डेथ और डिस्ट्रक्शन हुई है, जो हमारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, जिसमें हमें बिलियंस का नुकसान हुआ है, ट्रिलियंस का नुकसान हुआ है, हमारी बहुत सारी करोड़ों की पॉपुलेशन मारी गई है, हमें रीबिल्ड करना है। उसके लिए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या सोशली जो भी हमें चीजें चाहिए, हमें वो पहले डिस्कस करनी है कि हम उसको कैसे सॉल्व करें, हम वो कैसे दें। इसीलिए इस किस्म का काउंसिल 1949 में बनाया गया।
So दूसरा step that was taken by these European countries was that they established a Council of Europe in 1949. So ये दूसरा एक step था जिसके वजह से इन member states के बीच में कोई भी policy, कोई भी जो program है, जो भी step लिया जाएगा उसको discuss करके ही आगे बढ़ाया जाएगा. Now point number 3 इंपॉर्टेंट, हम पढ़ रहे हैं रीजंस क्या थे जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशन हमें बनानी पड़ी या वजूद में आई. तीसरा यह है दैट इन 1951 6 कंट्रीज ऑफ यूरोप विज आई राइट डाउन द नेम ऑफ द कंट्रीज हेयर. मैं लिखूंगा यहां पर वो कंट्रीज कौन कौन सी थी. सबसे पहले इटली के बाद फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड जिसको हम नेदरलैंड्स भी कहते हैं. 1 2 3 4 2 more countries are there, West Germany and Luxembourg. But remember one thing, that all these countries are a part of West Europe, headed by United States of America. क्योंकि मैंने आपको बोला 2 ग्रुप की कंट्रीज थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, यूरोप 2 बराबर हिस्सों में बढ़ गया. एक साइड से था ईस्ट यूरोप, दूसरे साइड से था वेस्ट यूरोप. और ईस्ट यूरोप वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर, दैट इज कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, एंड ऑन द अदर हैंड वेस्ट यूरोप वाज कंट्रोल्ड बाय यूएसए एंड उनकी आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म. तो यहां से ये स्टार्ट हो रहा है यूरोपियन यूनियन बनना. अभी यूरोप पूरी तरीके से यूनाइट नहीं हुआ है जब तक डिसइंटीग्रेशन नहीं होगी. तो हम कोल्ड वॉर के टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1951 में कोल्ड वॉर इज गोइंग ऑन. सो दीज 6 कंट्रीज ऑफ वेस्ट यूरोप मेट. The name of these countries is Italy, France, Belgium, Holland or Netherlands, West Germany, Luxembourg, and they were headed by United States of America at that time. और इन्होंने मिलकर क्या किया? What was the step that was taken by these 6 countries? That was that they signed a treaty called as the Treaty of Paris. They signed a treaty called as the Treaty of Paris. It was signed by these 6 countries in 1951, and with the help of this treaty they were able to form European Coal and Steel Community. I'll repeat my point. I said that in 1951 the 6 countries of West Europe met. They met in Paris, and the name of these countries is Italy, France, Belgium, Holland or Netherlands, West Germany, Luxembourg. They met in Paris and they signed a treaty called as the Treaty of Paris, and with the help of this Treaty of Paris they were able to form an organization called as European Coal and Steel Community. What was the main aim of this European Coal and Steel Community? That means अब ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे वो इनके बीच में होगा. कोल इनके पास पाया जाता है, बिकॉज हर एक जगह दुनिया में, हालांकि सब जगह सेम अमाउंट का आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेज नहीं पाए जाते हैं, मिनरल रिसोर्सेज नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर पाया जाता है. जैसे कि हमारे कश्मीर में भी बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हर एक जगह उनका सेम अमाउंट नहीं पाया जाता है. तो यहां पर भी यूरोप में कोल पाया जाता है और स्टील भी पाया जाता है. स्टील मींस आयरन ओर पाया जाता है, फिर उसको स्टील में कन्वर्ट किया जाता है जब उसको मॉडिफाइड शक्ल में या फिनिश्ड गुड में जब उसको कन्वर्ट किया जाता है. तो कहने की बात यह है कि अब ये एक दूसरे के साथ इसका ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे और इकोनॉमी के लिए एक दूसरे को फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस वाज द थर्ड स्टेप, दिस वाज द थर्ड रीजन
reason that why this European Union came to being. But now these countries, they have understood that फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, कोल्ड वॉर की वजह से हम पर क्या गुजर रही है या गुजरी है, तो हम इसको खत्म कैसे कर सकते हैं? बाय कोऑपरेटिंग, बाय कोऑर्डिनेटिंग. तो ये कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन ही तो है यहां पर इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बनाना या ऐसा बनाना या इस तरीके की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना. लेकिन एड इनको कर रहा है कोल्ड वॉर, क्योंकि कोल्ड वॉर ही ऐसा स्टेप पहले लेता है. कोल्ड वॉर की कंट्रीज ही ऐसा कोई स्टेप ले रही है जिसकी वजह से इनको ये बात समझ में आ गई that united we stand, divided we fall. And if we have to challenge the big powers of the world, the big power rivalry of the world, the bipolar world, then it is very important that we people should take some steps and should establish the organizations like European Economic Cooperation, the Council of Europe, the Treaty of Paris, with it European Coal and Steel Community. One more step, इसको मैं इरेज करूंगा ताकि आप और स्टेप्स देख सकें. नीचे वाला पॉइंट आई विल कीप इट देयर. चलिए, द नेक्स्ट पॉइंट इज, दैट इज पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4, again these 6 countries in 1957 these 6 countries met again, and this time they met and they started to make one more treaty. They started to sign one more treaty. They started to work on one of the other treaties that was signed by these countries. वो treaty को भी अब ये पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद साइन करेंगे. It was signed in 1957. The name of this treaty was the Treaty of Rome. They met in Rome. Countries met in Rome and signed a treaty called the Treaty of Rome. इसके जरिए इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशंस और बनाए. इससे पहले I told you people that they met in Paris for the first time in 1951 when these 6 countries signed a treaty called as the Treaty of Paris, and with the help of this Treaty of Paris they were able to establish an organization. The name of that organization was European Coal and Steel Community. Now again these 6 countries, that is France, Belgium, Italy, Holland and West Germany and Luxembourg, they met again in 1957 in Rome, and this time they signed one more treaty. The name of that treaty was Treaty of Rome, क्योंकि ये रोम में साइन की गई, तो इस तरीके से इसका नाम ही रखा गया द ट्रीटी ऑफ रोम. एंड दिस ट्रीटी इज साइंड बाय द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट यूरोप. इस बार इन्होंने इससे 2 और ऑर्गेनाइजेशंस जो है बनाई. उन 2 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम क्या है? सबसे पहले इन्होंने बनाई यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. शॉर्ट में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसका मकसद क्या है इस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का, जो ऑलरेडी इन्होंने फिर से पहले ही बनाई है, लेकिन अब ये इसको एक फॉर्मल शेप दे रहे हैं. ये 6 कंट्रीज भी इसका हिस्सा बन रही है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का. 1957 में इन वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने इस ट्रीटी को साइन किया, और एक और ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई जिसका नाम है यूरोटॉम. यूरोटॉम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद 1957 में बनाई. दैट इज आफ्टर द 6 years of establishment of European Coal and Steel Community. Now they understood that now this organization is working properly. Now is the time that we should take further steps to strengthen our relations. That is why they made this organization. Then at the same time they established this organization as well, which is actually their aim. जो इनका एम है, वो एम क्या था? इससे पहले मैंने आपको बोला, री एस्टैब्लिश करना अपने फिर से पुराने स्ट्रक्चर्स को, इंडस्ट्रीज को, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को, या बाकी जो चीजें हैं वो फिर से डेवलप करने के लिए इन्होंने इस किस्म के कदम लिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज
Point number 5. In 1979, these countries took further steps to form a parliament of this organization, that is EEC, European Economic Community, and the members of this organization this parliament are elected directly by the people of these 6 countries, or the countries that will become a part of this European Economic Community. I'll repeat my point. मैंने बोला 1979 में इन्होंने एक और स्टेप लिया और जिसके जरिए इन्होंने एक पार्लियामेंट बनाया, किसका? EEC का, of EEC, and the members of the parliament are elected directly by the people. चलिए मैं आपको बोलता हूं, मैंने आपको इससे पहले बोला जब हम पार्लियामेंट में कोई बिल पास करते हैं, वो बिल पास करने के लिए हमने पहले से ही रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा होता है. उन रिप्रेजेंटेटिव्स को हर 5 साल के बाद हम लोग चुनते हैं, लोकसभा के मेंबर्स को, एंड दे रिप्रेजेंट द होल नेशन. तो हमने उनको पावर दिया है. इसी तरीके से इनके सही और बुरे का फैसला, ये हालांकि बंच ऑफ कंट्रीज है, कोई एक कंट्री नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें समझना है कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एक कंट्री की कम्युनिटी नहीं है, बल्कि 5, 6, 10 कंट्रीज की कम्युनिटी हो सकती है. तब ये 6 कंट्रीज की थी, अब ये बहुत ज्यादा कंट्रीज की है. इन्होंने मिलकर एक पार्लियामेंट बनाया, और पार्लियामेंट में ये एक कंट्री या 2 कंट्रीज ही मेंबर्स को नहीं चुनते, बल्कि सब मिलकर अपनी अपनी कंट्री से इसके लिए मेंबर्स को चुनती है, डायरेक्टली उनके लिए वोट करती है, ताकि उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रिबिल्ड करने का जो भी फैसला होगा वो डायरेक्टली लेंगे और हमारे बिहाफ पे लेंगे, मतलब लोगों के बिहाफ पे लेंगे. तो ये एक और स्टेप था जो इन्होंने लिया, और इसकी वजह से एक और इनमें वो जो है बूस्ट अप इनको मिला कि हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो दुनिया में बड़ी कंट्रीज को मात दे सकती है, उनको खत्म कर सकती है और उनको टक्कर दे सकती है फ्यूचर में, ताकि हम अपनी पहचान, अपनी बुनियाद जो है वो स्ट्रॉन्ग दिन ब दिन बना सके. इसके बाद एक और पॉइंट के जो कि लास्ट पॉइंट है जिससे हमें ये पूरा समझ में आएगा, दैट इज कि इन्होंने क्या किया. पॉइंट नंबर 6 इज द disintegration of USSR compelled these European countries to establish one more organization and strengthen themselves. अब डिसइंटीग्रेशन हो गई ना, दुनिया में एक ही ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है. डिसइंटीग्रेशन कब हुई? 1991 में. तो 1991 के बाद ही इनको लगा कि अब हमें दुनिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो कि हमारे इस सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग बना सके, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया की पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है या बननी चाहिए. तो इसीलिए 1992 में इन्होंने मैस्ट्रिच ट्रीटी साइन की, जो कि नेदरलैंड्स में साइन की गई थी, जो कि वेस्ट यूरोपियन कंट्री में साइन की गई थी. इस बार ये खाली वेस्ट की कंट्रीज के साथ ट्रीटी साइन नहीं की गई, बल्कि ये ईस्ट की कंट्रीज को भी अपने साथ बुलाते हैं, और अब यूनिफिकेशन हो रही है. दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप. क्योंकि अब यूरोप पहले 2 हिस्सों में बढ़ गया था. 1991 में जो ही डिसइंटीग्रेशन हो गई, अब वहां की कंट्रीज, वहां के लोग यहाँ के लोगों के साथ मिल रहे हैं, और यहाँ के लोग वहां के लोगों के साथ मिल रहे हैं, और मिलकर वो एक स्ट्रॉन्ग यूरोप बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई सेड दैट इन 1992, I'll write it down. In 1992, the countries of Europe, the West Europe and the East Europe, both the countries met and they signed a historical. These countries signed a historical document in Netherlands called as Maastricht
Maastricht Treaty and established the European Union. अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। इससे पहले जो स्टेप्स लिए गए थे वो असल में इस चीज को बनाने के लिए लिए गए थे। अल्टीमेटली ये तभी पॉसिबल हुआ जब डिसइंटीग्रेशन हो गई। लेकिन डिसइंटीग्रेशन को एड किसने किया? ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले जो बनाई गई, ईईसी बनाई गई या यूरोटॉम बनाई गई, या इससे पहले हमने यूरोपियन स्टील या कोल एंड स्टील ऑर्गेनाइजेशन की बात की, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन ने एड किया डिसइंटीग्रेशन को। डिसइंटीग्रेशन हो गई तो अब इनको लगा कि इससे पहले हम एक साइड के लोग थे, अब दूसरे साइड के लोगों को भी लाना चाहिए ताकि हम दुनिया की एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बना सके जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्या दे सकती है? मात दे सकती है। एंड दे वर एबल टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज द यूरोपियन यूनियन. Despite the fact that these countries had differences over the time, over the years, but ultimately their dream was fulfilled when they were able to establish an organization, European Union. One more point, that this European Union has its own flag. They have a separate flag. उनकी एक अपना फ्लैग है, एंड दे हैव दैट सेपरेट करेंसी यूरोपियन यूरो, जो कि हालांकि सारी कंट्रीज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, बट स्टिल दुनिया में अगर आप यूरो देखेंगे, मिलकर सारी कंट्रीज की करेंसी मिलकर वो डॉलर को एक थ्रेट पोज कर रहा है। मतलब डॉलर की कीमत इससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर आप दूसरे हिसाब से देखेंगे, दूसरे एंगल से देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ सिंगल कंट्री एंड यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज पाई जाती है, इसलिए यूरो का उतना वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। हाँ, कलेक्टिवली इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप सिंगल किसी कंट्री का यूरो देखेंगे, उसकी करेंसी यूरो अभी है, अगर वो अलग हो जाएगी वो यूरो ही रखेगी, तो उसके यूरो का अगर आप देखेंगे दुनिया में एक ही कंट्री यूरो की होगी तो उसका उतना वैल्यू नहीं होगा। लेकिन कलेक्टिवली इट इज पोजिंग ए थ्रेट टू यूएस डॉलर। एट द सेम टाइम दे हैव एन एंथम एज वेल, बट दिस ड्रीम ऑफ हैविंग अ सेम फ्लैग, अ सेम करेंसी, अ नेशनल एंथम, इट वाज द ड्रीम ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, नेमली विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो कि यूनाइटेड किंगडम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उसका ड्रीम था कि यूरोप एक यूनियन बन जाए और एक कंट्री में कन्वर्ट हो जाए, जिनका एक सेम फ्लैग होगा, सेम यूरो होगा, सेम एंथम होगा, बट एट द सेम टाइम दे शुड हैव अ सेम कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. But the dream of this great leader was not fulfilled, क्योंकि सारी कंट्रीज ने एक सेम किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से इनकार कर दिया, इसलिए वो ड्रीम आज भी इनका फुलफिल नहीं हो रहा है. एट द सेम टाइम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट यूरोपियन यूनियन इज दैट इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल एंटिटीज इन द वर्ल्ड, बिकॉज इट इज पोजिंग थ्रेट to United States of America, not economically but politically as well, because some of its members, first of all, it was UK. It was. I said it was. Now it is not. UK and France. They are. This is still the part of UNSC. And this is still the part of European Union. This is still the part of UNSC. But this is not the part of EU. क्योंकि Brexit हो गया. लेकिन फिर भी इनके पास एक ऐसा मेंबर है जो कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है. अगर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन लिया जाता है और वो डिसीजन किसको लेना है? यूएनएससी को, और वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हो रहा है, फ्रांस जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, दे विल डेफिनेटली मेक यूज ऑफ देयर पावर इन यूएनएससी, दैट इज वीटो. तो इस तरीके से वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कंटेन कर रहे हैं, उनको एक ही जगह रख रहे हैं, उनकी पॉलिसी नहीं चलेगी. एट द सेम टाइम इकोनॉमिकली अगर आप देखेंगे, ये दुनिया की दूसरी बड़ी आप कह सकते हैं इकोनॉमिक एंटिटी मानी जाती है. इनका अगर आप जीडीपी 2005 का देखेंगे, 2005 का देखेंगे, इट वॉज $12 ट्रिलियन. $12 trillion, that is slightly larger than that of United States of America. Collectively, I mean to say, क्योंकि यहां पर बहुत सारी कंट्रीज पाई जाती है, ठीक है. लेकिन फिर भी you can say that this organization, that is European Union, is posing a threat to United States of America. And now you understand कि किस वजह से
किस तरीके से यूरोपियन यूनियन वजूद में आया और क्या हमें इसकी जरूरत है या नहीं है। एक एग्जांपल मैं दूंगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट। लेट्स गो बैक टू 1990 यूएस हेगेमनी। मैंने आपको गल्फ वॉर के बारे में बोला था, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट टाइम वाज जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फादर, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दैट टाइम इन 1990s, और गल्फ वॉर वजूद में आ गया। हालांकि द ऑपरेशन दैट वाज सैंक्शन्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज नॉट सैंक्शन्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, विद इट्स ओन कंसर्न, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन दैट टाइम वाज प्रेशराइज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि उसमें 6,60,000 ट्रूपर्स ने पार्टिसिपेट किया, 34 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, मोर देन 34 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। उसमें से 75% के जो ट्रूप्स थे दे बिलोंग्ड टू यूएसए। दैट मीन्स वो दुनिया की किसी भी रेजिडेंट को मोल्ड कर सकता है। दैट इज वाई वी आर इन नीड ऑफ ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर टू कंटेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि दुनिया में कभी भी कोई भी रेजिडेंट ले सकता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन उसको रोक नहीं सकता है। जब तब उसने उसको प्रेशराइज किया और बोला कि हमें ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को स्टार्ट किया गया। अगर आप देखते हैं फॉर 34 कंट्रीज है तो सबसे सेम अमाउंट ऑफ सोल्जर्स होने चाहिए, लेकिन यहां पर एक ही कंट्री से 75% के सोल्जर्स पाए जाते हैं। सो दैट इज व्हाई वी आर इन नीड ऑफ यूरोपियन यूनियन लाइक ऑर्गेनाइजेशंस, सो दैट इट विल बी एबल टू कंटेन the policies and programs of United States of America. That was all about European Union and alternative centers of power. There is much more to discuss, but we don't have time. Inshallah, let's see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.